chalo, then again let's recall what you have done in last class. I think we had left topic at dearrangement. So dearrangement is where you have to put n objects. You have to place n objects in n position such that no object is at its original or recommended position, है ना? जहाँ पर आपको arrangement जो है, you have to make them in full disorder. So dearrangement of, if I'm talking about one object, now if there is one letter and one envelope, है ना, you can't dearrange them. So that is 0 ways. Dearrangement of two objects, that is in one way. What's dearrangement of three? And dearrangement of three, how much? Two ways. Two ways it is, है ना? और हमने ये जो किया था, that was, we'll do is, that's the last dearrangement is 1 into 3. ठीक है? So into 3 minus 1. Now dearrangement of 4, that is last one is 2, so 2 into 4 plus 1, that is 9 ways. Dearrangement of 5, that is 9 into 5 minus 1, that's 44. Dearrangement of 6, that is 44 into 6 plus 1, है ना, that's 265. तो dearrangement of 6 है ना, ये फिगर आपको याद होनी चाहिए. एग्जाम में यूजुअली dearrangement of 7, 8 है ना, 8 तक आता है. 9, 10 is hardly any time it is been asked. Okay, let's see some questions here. So this we have done last time. Okay, there are 8 students in the classroom. Teacher is not satisfied with the seating arrangement and demands that everyone move to a new seat. So जो 8 students हैं, those are like letters, और जिन 8 seats पर they are sitting, those are like envelopes, है ना? So उन 8 students की 8 fixed seat है जहाँ पर they are sitting. Now teacher wants everyone to shift their seats so that no one is sitting at the original position. तो original arrangement allowed नहीं है, so this is a case of dearrangement of 8 things. ठीक है? So my answer will be dearrangement of 8 articles. And you clear? So dearrangement of 7, that answer will be 7 into 265 minus 1. And dearrangement of 8, that will be 8 times of dearrangement of 7 plus 1. That will be my answer. Another way of finding dearrangement of 8. Anyone? Saransh? Sir, I do not remember that way. Anyone? N factorial? factorial. हाँ जी. Bracket 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon Very 3 good. factorial Plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 plus 1 upon 6 minus 1 upon 7 plus 1 upon 8 factorial, है ना? ये थोड़ा सा लेंथी है. हाँ जी, come again. सर मैंने सॉल्व किया था. डीअरेंजमेंट ऑफ 8 इज 14833. 14833. वेरी गुड. अब दोनों वेज में देखेंगे, आंसर सेम आएगा आपका. ठीक है, लेटर ऑन यू कैन जस्ट चेक इट आउट. In how many ways we can distribute 10 letters in 10 envelopes such that exactly 2 letters are in correct envelope? Chat box, write your answer in chat box. No need to put values of the arrangement, है ना? You can just use it in symbolic form. ठीक है, let's take the answer from Abhiraj. Abhiraj is saying sir answer is dearrangement of 10 into 8 factorial. हाँ जी Abhiraj, can you discuss the logic? डीअरेंजमेंट ऑफ 10 आर्टिकल्स में सब रॉन्ग पोजीशंस में होंगे, और हाँ जी, अगर सारे ए एंड बी को करेक्ट पोजीशन में रखा तो बाकी कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल. बाकी को क्या अरेंज कर रहे हो आप बेटा? आपने पहले ही जो है भाई हमारे, आप यहाँ पर परम्यूटेशन नहीं चल रहा है ऐसा, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे. आपने इसमें सब में जो है रॉन्ग लेटर्स डाल दिया है. दैट इज डीअरेंजमेंट ऑफ 10. ठीक है, अब ये इंटू 8 फैक्टोरियल कहां से आ रहा है? ठीक है, मैंने
सारे के सारे 10 लेटर्स को गलत एनवलप में डालने के लिए बोला ही नहीं है आपको, ठीक है। लेट्स सी द लॉजिक हियर। देखो अगर यहां पर मैंने आपको बोला होता 8 लेटर्स को 8 एनवलप्स में डालना है, गलत डालना है, आपका आंसर क्या होता बेटा? आपका आंसर डीअरेंजमेंट ऑफ 8 होता है ना। 8 लेटर्स 8 एनवलप्स सभी गलत जाने चाहिए। कंडीशन क्या, अब ये 10 लेटर्स 10 एनवलप्स है, 2 सही जाने चाहिए। तो पहले आप चेक कर लो कौन से 2 सही जाने चाहिए, है ना। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिसाइड विच 2 लेटर्स आई विल पुट इन करेक्ट एनवलप्स। सो लेट्स ब्रेक द क्वेश्चन हियर, ठीक है। मेरे पास 10 लेटर्स 10 एनवलप्स है, उनमें से मैं कोई भी 2 एनवलप सिलेक्ट करके उनमें सही लेटर डालना चाह रहा हूं। तो वो 2 एनवलप्स मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं जिनमें सही लेटर्स जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, सिलेक्शन का केस हो रहा है। मेरे को 2 लेटर्स 10C2 10C2, ठीक है। सिलेक्ट 2 envelopes in 10C2 ways, ठीक है। अब इनमें जो हर वे होगा, है ना, हो सकता है आपने ए बी सिलेक्ट किया, या हो सकता है आपने ए डी किया, या हो सकता है आपने ई और एच किया। इनमें हर एक में हर सिलेक्शन के बाद देयर आर 8 envelopes लेफ्ट विद 8 लेटर्स जिनको आपको गलत वे में डालना है ना। यू हैव टू रीअरेंज देम। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? यू कैन डू इट इन रीअरेंजमेंट ऑफ 8 वेज, है ना। हर एक केस में इतने वेज में आप रीअरेंज कर सकते हो। ये कितने वेज हैं? ये 10C2 वेज हैं, और हर एक के साथ कितने आंसर्स आ रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ 8? सो माय आंसर विल बी, माय आंसर इज फर्स्ट आई हैव टू सिलेक्ट 2 एनवलप्स जहां पर सब करेक्ट जाएंगे इनटू रीअरेंजमेंट ऑफ 8। जो बाकी 8 बच गए उनका क्या करना है? उनको रीअरेंज करना है आपको। yes हाँ जी, सो जस्ट अ मिनट, है ना। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट्स फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, ठीक है। बहुत ही क्लैरिटी रखनी है आपको इस कॉन्सेप्ट में। कहीं पर कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, जस्ट आस्क मी इमीडिएटली, ठीक है, और डोंट बी हेजिटेंट टिल एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट क्लियर, ठीक है। यू कैन आस्क सेम थिंग 10 टाइम्स बट बी श्योर यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस थिंग, ठीक है। सो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन में 2 चीजें हैं बेटा। या तो आप चीजों की सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप चीजों की सिलेक्शन कर रहे हैं, और अदरवाइज आप चीजों को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 केस कौन से बनेंगे? मुझे 10 में से 3 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है ना, और या फिर मुझे 10 चॉकलेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, दैट इज ऑफ 3 and 7, ठीक है। सो दीज आर द 2 केसेस आर देयर, ठीक है। ये दोनों केसेस बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे के, एक्सेप्ट व्हेन द ग्रुप साइज इज सेम। जब ग्रुप साइज सेम होगा तो यहाँ पर चीजों में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट आई मीन इज, अगर मुझे 10 में से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है तो 10C3, मुझे 10 चॉकलेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें एक ग्रुप का साइज 3 है, दूसरे का 7 है। सो पहले मैंने 10 में से 3 चीजों को सिलेक्ट किया और उसको साइड में रख दिया, तो नाउ दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ 3 and 7 चॉकलेट्स, ठीक है। आंसर सेम है बट दोनों की एप्लीकेशन जो है थोड़ी डिफर कर जाएगी व्हेन ग्रुप साइजेस स्टार्ट्स बिकमिंग सेम, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। अब मैं जो चीजों को सिलेक्ट कर रहा हूं उसमें केस क्या हो सकते हैं? जो चॉकलेट्स हैं वो सारी की सारी डिफरेंट है। केस क्या था? या तो 10 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं या 10 डेयरी मिल्क इक्लेयर्स हैं, है ना। सो दीज आर डिफरेंट केसेस, इक्लेयर्स आर ऑल सेम एंड अदरवाइज डिफरेंट चॉकलेट्स कैन बी देयर, ठीक है। नाउ विद इन दिस अगेन वी आर मेकिंग 2 केसेस। भाई मेरे पास 2 चीजें हैं ना, या तो ऑब्जेक्ट्स हैं या सिलेक्शन है, ठीक है। तो दूसरा केस है दैट इज सिलेक्शन साइज इज फिक्स्ड, मुझे पता है मुझे कितनी चॉकलेट सिलेक्ट करनी है। तो 2 केस बने, मेरे पास जो है 10 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, मैंने आपको बोला इसमें से आप 6 चॉकलेट्स जो है वो उठा सकते हो, और मैंने आपको बोला इसमें से आप कुछ चॉकलेट्स उठा सकते हो, है ना।
So these are two different cases are there. So first one is selection size is fixed. मैंने आपको बोला you can pick 3 chocolates. So select 3 fruits out of a basket with 10 different fruits. एक basket में 10 different fruits हैं, उनमें से आपको 3 fruits select करने हैं. तो in how many ways you can do? हाँ जी, आंसर सिंपल है 10C3 है ना. आपने 10 में से वो 3 सिलेक्ट किए, ठीक है, जिनको आप यू आर गोइंग टू ईट, और आंसर कैन बी 10C7. आपने जो वो 7 फ्रूट सिलेक्ट किए whom you are not going to eat, है ना, और you are putting it separately. Both the answers are same. Now, if selection size is not fixed, ठीक है, then what will be my answer? Select few fruits out of basket with 10 fruits. 10 fruits हैं, उनमें से मैं आपको कह रहा हूँ कुछ fruit select करो. तो in how many ways you can select it? हाँ जी भाई, केसेस बनेंगे, ठीक है. सर 1 2 3 अप टू 10 तक के अलग अलग आ जाएंगे. हाँ, why 1 2 3, why not 0? मुझे फ्रूट्स पसंद ही नहीं है, मैंने कोई सिलेक्ट ही नहीं किया फ्रूट, है ना. सर बट फ्यू लिखा है तो एक तो होगा ही. हाँ, फ्यू का मतलब देखो, इंग्लिश में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लेट्स से इफ आई एम सेइंग सिलेक्ट फ्यू फ्रूट्स फ्रॉम दिस, है ना, आप हाथ जोड़ के बोलोगे नहीं सर मुझे फ्रूट से एलर्जी, आई एम नॉट टेकिंग. तो दैट वाज योर चॉइस ना, यू हैव नॉट टेकन एनीथिंग. ओके सर, यस. ठीक है, सो आंसर क्या होगा फटाफट. आपने अगर 0 फ्रूट लिया है तो 10C0, 1 लिया है तो 10C1. अगर 2 फ्रूट्स आप कितने वे में ले सकते हो, 10C2 वेज में. 3 फ्रूट्स 10C3 वेज में, अप टू आपने सारे के सारे फ्रूट्स ले लिए 10C10, है ना. सो दिस इज माय आंसर. एग्रीड. ओके, नाउ हियर वैभव गुप्ता इज सेइंग कि सर 2 ये इनको आप ऐड करेंगे ना तो आंसर आपका 2 10 आएगा. क्या आप मुझे वो लॉजिक दे सकते हैं कि ये 2 10 कैसे करेक्ट होगा? सर आई थिंक आई नो. हाँ जी बोलो. सर बिकॉज हर फ्रूट के, सर मतलब अगर हर फ्रूट अलग अलग है तो सर या तो सर 2 केसेस बन जाएंगे कि अगर हम उसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे. Impressive, very good. आपने पहला फ्रूट उठाया एप्पल. You have 2 choices, either you will select it or you will not select it. ठीक है. Second fruit is grapes. You will select it or you will not select it. For each fruit you have got exactly 2 options, either it gets selected or it does not get selected, and thus your answer is 2 10. ठीक है, तो यहां से हमें एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी आइडेंटिटी मिल रही है, दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn-1 प्लस NCn. दिस इज 2n. ठीक है, कॉपी कर लें इसे. Select few fruits out of a basket में हमने 10. बेटा योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. I'm audible now. Still, is it this problem is with me or for everyone? No sir, I also can't hear very clear. ना Abhiraj, you have to speak loudly or get the mic checked. Okay. Select few fruits out of a basket. So why we have add 10C0 plus 10C1 till 10C10? हाँ जी, जब आप फ्यू फ्रूट सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कितने फ्रूट्स. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 फ्रूट. ठीक है, और अगर आपको 1 फ्रूट सिलेक्ट करना है तो 1 फ्रूट कितने वे में आप कर पा रहे हैं, 10C1 में. 2 फ्रूट्स 10C2 वेज में. ठीक है, सो दिस बिकम्स योर टोटल ऑप्शंस. व्हेन आई से हाउ मेनी यू सिलेक्ट फ्यू फ्रूट्स, तो पहले आप डिसाइड कर रहे हैं 1 2 3 हाउ मेनी फ्रूट्स, और देन फॉर ईच कॉरेस्पॉन्डिंग लेट्स से आपने सिलेक्ट किया 3 फ्रूट्स, तो उसमें फिर 10C 3 ways are there for you to select 3 fruits. ठीक है, तो हर एक नंबर पे जो आपकी ऑप्शंस आएंगी वो ऐड हो जाएंगी. ठीक है, आप मुझे बताओ अभिराज, अगर मैंने आपको ABCD अप टू 10 लेटर्स दिए हैं, है ना, आप कोई भी लेटर सिलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितने मर्जी लेटर सिलेक्ट करो. हाँ जी अभिराज.
ठीक है. Let's say Abhiraj is selecting D, H and I. So D, H and I is 3 letters he has selected. और 3 letters हमारा जो है वो 10C3 में फॉल करेगा. 10C3 में हमने ऑलरेडी वो सारे केसेस काउंट किए हैं जहां पर 3 letters सिलेक्ट हुए थे. So that was one of the way. ठीक है. और he could have selected D, H, I and J. तो 4 letters तो वो 10C4 में काउंट हुआ है हमारा. ठीक है. That's how all the letters are being counted. ठीक है विराज. Sir. Select at least one fruit. Same cases we are doing. Select at least one fruit from a basket with 10 fruits. हाँ जी, वेरी गुड सारांश. ठीक है, ये याद रखेंगे आप बेटा, जहां पर एटलीस्ट, एटमोस्ट है ना, ये सब चीजें यूज हो रही होती हैं, तो वहां पर आप दूसरा केस भी देख सकते हैं जहां पर टोटल माइनस अनएक्सेप्टेबल केसेस आ रहे हैं. तो एटलीस्ट वन फ्रूट, दैट मीन्स यू कैन सिलेक्ट वन फ्रूट और 2 fruits or 3 or all the 10 fruits, है ना. Other way is total cases minus you have not selected any fruit. ठीक है, this can be the answer. So this is your 2 raised to power 10 are total cases minus no fruit is selected. So that's my answer. चलो next one, solve it. From 10 friends, in how many ways we can invite at least 2 of them for a party? यहाँ पर देखो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है. मुझे 10 में से कुछ फ्रेंड्स को सिलेक्ट करना है, कम से कम 2 फ्रेंड्स होने चाहिए उनमें. अब मैं उनको मुर्गा बनाऊं, पार्टी में बुलाऊं, है ना, दैट डजंट मैटर. आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स. ठीक है. तो अब सिलेक्शन में देखेंगे सारे फ्रेंड्स दे आर डिफरेंट, उनको हम सेम कैटेगरी में नहीं डालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर बात हो रही है सिलेक्शन की, और सिलेक्शन में सारे के सारे फ्रेंड्स जो है वो मेरे डिफरेंट है. ठीक है. क्या सिलेक्शन साइज फिक्स है? क्या मुझे पता है कि 3 ही फ्रेंड बुलाने हैं? नो. सिलेक्शन साइज जो है वो हमारा इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. सिर्फ एक लिमिटेशन है बट फिक्स नहीं है सिलेक्शन साइज. हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, इम्प्रेसिव. बट एवरीवन इज नॉट आंसरिंग. आर्यन आंसर. विजया, प्रांतिक. So from 10 friends, ठीक है, in how many ways we can call them? 2 raised to power 10. या तो कॉल किया या नहीं किया. ठीक है, इनवाइट किया या नहीं. And at least 2 of them for a party. So minus when I have called 0 friends, minus when I have called only 1 friend. तो उनको हमें माइनस करना है. 2 raised to power 10 minus, that is 10C0 minus 10C1. This is my answer. हाँ जी, डन डन. तो विजय आपने शायद यहाँ पर गलती की है ना बेटा. सिर्फ 1 फ्रेंड को अगर हम नहीं बुला सकते हैं, ओनली 1 फ्रेंड ऑप्शन इज नॉट देयर, सो यू विल सबट्रैक्ट ऑल द ऑप्शंस कि हमने ए को बुलाया, बी को या सिर्फ सी को, है ना. ऐसे हमारे पास 10 ऑप्शंस थी, वो सभी माइनस करनी थी आपको. Yes, sir. हाँ जी, वेरी गुड. तो चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं इसमें. अभी हमने जो किया वहां पर all objects were different, and now here we are doing all objects are not different. ठीक है. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है. ठीक है. So in this case how to proceed? Again 2 cases will be there. ठीक है. This you note it down है ना बेटा, इसको अलग से नोट करें. 2 cases कौन से होंगे? सिलेक्शन साइज इज फिक्स्ड, सिलेक्शन साइज इज नॉट फिक्स्ड. पहले जो 10 फ्रूट्स थे तो वहां पर सभी 10 फ्रूट्स डिफरेंट थे. अब यहां पर जो 10 फ्रूट्स हम ले रहे हैं उसमें 4 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स, 2 मैंगोज, 1 बनाना. ठीक है. इनमें से आपको 3 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं बेटा. इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? थिंक ऑन इट एंड देन विल डिस्कस. हाँ जी, लेट्स सी हियर. So you have to select 3 fruits, है ना.
तो प्रैक्टिकली देखें वो जो 3 फ्रूट्स हैं वो आप कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ऑल डिफरेंट. इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट ऑल डिफरेंट फ्रूट्स? तो ऑल डिफरेंट में आपके पास क्या है बेटा? ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है. ठीक है, एक एक ही तो ले सकते हैं आप. तो इनमें से 3 फ्रूट्स कितने वे में सिलेक्ट करेंगे? 4C3. 4C3. सेकंड केस बताओ कौन सा बनेगा? 2 same 1 different. 2 सेम एंड 1 डिफरेंट. ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं वो 2 सेम जो है वो कौन सा वाला होगा जो सेम होगा. भाई आपके पास है 4 ऑरेंज, 3 एप्पल्स एंड 2 मैंगो. वो 2 सेम में बनाना तो काउंट ही नहीं होगा. तो पहले ऑरेंज, एप्पल और मैंगो इनमें से एक फ्रूट सिलेक्ट करते हैं जिसको हम डबल कर देंगे. फिर कितने वे में सिलेक्ट करेंगे आप? 3C1. इन तीनों में से आपने एक फ्रूट सिलेक्ट किया, लेट्स से एप्पल सिलेक्ट किया, फिर उसको डबल कर दिया, है ना. तो ये 2 सेम टाइप के हो गए. फिर आपको एक डिफरेंट टाइप का और सिलेक्ट करना है, तो वो कितने वे में होगा? हाँ जी, हाँ जी. Aryan, your voice is not audible. सर 2C1. 2C1. 2C1 कैसे बेटा? सर 3 एप्पल 2 मैंगो. बेटा आवाज नहीं आ रही है. तो 2C1 में ही से कि सर एप्पल तो सिलेक्ट हो गया है, ऑरेंज और मैंगो में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं. इज ही करेक्ट? भाई जो एक सिंगल फ्रूट सिलेक्ट करना है वो हमारा बनाना भी हो सकता है ना. तो 4 में से हमने एक फ्रूट पहले, फर्स्ट 3 में से एक फ्रूट हमने सिलेक्ट कर लिया ना. हमने एप्पल सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने डबल भी कर दिया. फिर उसके बाद हमें एक सिंगल फ्रूट सिलेक्ट करना था, तो वो सिंगल फ्रूट हमारा ऑरेंज हो सकता है, मैंगो हो सकता है या बनाना हो सकता है. सो आंसर विल बी 3C1 into 3C1. हाँ जी, एग्रीड. Yes, sir. और थर्ड केस क्या होगा हमारा? All. ऑल सेम. ऑल सेम में हमारे पास ऑप्शंस कितनी है? हाँ जी, हाँ जी. 2 ऑप्शन है बस, 2 ऑरेंज या एप्पल. हाँ जी, 2 ऑप्शन है बस, या तो ऑरेंज या फिर एप्पल्स. सो आंसर इज 2C1. एंड टोटल विल बी हाउ मच? टोटल विल बी योर फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस प्लस थर्ड केस. ठीक है, सो दैट्स योर आंसर. ठीक है, जस्ट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑन इट. ठीक है, नाउ सिलेक्शन साइज इज नॉट फिक्स्ड. It's not given. You are selecting 1 fruit or 5 fruits or 10 fruits. Then in how many ways you can select the fruits? Okay. A hint is more or less same approach which we have done in last case जहाँ पर सारे objects different थे. तो exactly वही approach लगेगी. ठीक है, तो थोड़ा सा सोचें फिर then answer it, है ना. I'm giving you time, think on it. हाँ जी. Yeah, what you are saying? 2 raised to power 10 minus 1. Is it so? तो आप लॉजिक बताओ. -10 होगा -10. ओके, लॉजिक बताओ. सर, क्योंकि सर मतलब एक कोई ऐसा केस नहीं लेंगे जिसमें हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि सर एटलीस्ट 1 है. और सर एटलीस्ट 1 ऑफ द फ्रूट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने. तो -10 का लॉजिक आई एम नॉट गेटिंग. और प्लस आपने देखो पहले मेरे पास ऑरेंज 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 ऑरेंज, फिर मेरे पास है एप्पल एप्पल एप्पल, है ना. एंड आई हैव गॉट मैंगोज एंड बनानास. ठीक है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज, मैंने आपसे पूछा आपने क्या लिया? सर मैंने एक ऑरेंज लिया जो तीसरे नंबर पे था. बास्केट में मुझे क्या पता कौन से नंबर पे ऑरेंज था. ठीक है, आपने इस ऑरेंज को उठाया, या तो सिलेक्ट किया या नहीं किया,
लेट्स से इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, तो वन ऑफ द केस वाज आपने एक ऑरेंज लिया, और दूसरे केस में आपने क्या इसको नहीं किया सिलेक्ट, इसको भी नहीं किया, इसको कर लिया हमने, इसे नहीं किया। तो यहाँ पर भी तो सिर्फ एक ही ऑरेंज सिलेक्ट किया आपने। इन द एंड व्हेन आई आस्क यू हाउ मच फ्रूट्स यू हैव सिलेक्टेड, so you'll say sir I have selected one orange. Both the cases will be counted as same, not different. Anji, anyone else? Anji, very good Vaibhav. ठीक है, Vaibhav is picking up logic from the previous question. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगर ऑरेंज एक उठाया है तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे उस ऑरेंज से रिलेटेड, या तो मैं एक भी ऑरेंज नहीं लूंगा या फिर एक ऑरेंज लूंगा। यहां पर जब मैं ऑरेंज को उठा रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है ऑरेंज से रिलेटेड? या तो मैंने एक भी ऑरेंज नहीं लिया या फिर, हाँ जी एनीवन, या फिर लिया, या फिर एक लिया, या फिर यस सर, या फिर दो लिए सर, फिर जितने या भी फिर होते हैं। दो लिए, या फिर तीन लिए, या फिर चार लिए। तो ऑरेंज से रिलेटेड मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, एंड हाउ अबाउट मैंगोज? ठीक है, एप्पल से रिलेटेड, एप्पल से रिलेटेड 4 ऑप्शन, मैंगो से रिलेटेड 3 and banana से related 2 options. So total I can do selection is 120. But ये आंसर तो गलत है। हाँ जी वैभव, क्यों गलत है ये आंसर? सर क्योंकि एटलीस्ट वन होना था। एटलीस्ट वन फ्रूट था, है ना? सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, फिर भी आंसर मिले 0। ठीक है, क्योंकि आपने वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं दिया। एटलीस्ट वन फ्रूट, तो यहाँ पर वो माइनस करेंगे जहां हमने कोई भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं किया है। हाँ जी, चेक करें इफ एनी डाउट। सर सिर्फ -1 क्यों कर रहा है? -1 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें कम से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करना था। ये नहीं था कि कम से कम एक टाइप का फ्रूट, नहीं, कम से कम एक फ्रूट है ना, बस उतनी सी रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि 4 ऑरेंज है, 3 एप्पल है एंड 4 एप्पल एंड 3 मैंगो, तो सब फिर कैसे करेंगे? तो कुछ गिवन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? मतलब क्या गिवन क्या है? कुछ तो गिवन होगा ना। हमें सिलेक्शन करने के लिए बोला है, किसमें से सिलेक्ट करना है, वो चीज तो गिवन होगी कि किसमें से सिलेक्ट करना है हमें, है ना? आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है बेटा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम वापस देखें तो बेटा मेरे पास x है, ठीक है, o ले लेते हैं हम, है ना? सो आई हैव गॉट o इज देयर, दैट इज 4 ऑरेंजेस, है ना? देन आई हैव गॉट 3 ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस, 1 ऑरेंज एंड 0 ऑरेंज। ठीक है, देन आई एम सिलेक्टिंग, उसके बाद मुझे एप्पल सिलेक्ट करना है, दैट इज 3 एप्पल्स, 2 एप्पल्स, 1 एप्पल और 0 एप्पल। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास कितनी टर्म्स आएंगी? ठीक है, कितनी टर्म्स आएंगी? ईच वन गेट्स मल्टीप्लाइड विद ईच अदर वन। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 5 टर्म्स हैं, यहां पर मेरे पास 4 टर्म्स हैं। ठीक है, सो टोटल ऑफ 20 टर्म्स आई एम गेटिंग हियर। वो 20 टर्म्स कैसी होंगी? या तो ऐसे होगा कि आपके पास o रेज टू पावर 4 into a रेज टू पावर 1, है ना? ऐसे ऐसे करके टर्म्स होंगी। अगर मैंने यहाँ पर बेटा और टर्म ऐड कर दी, मैंगोज को भी मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने बनानास को भी ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ हाउ मेनी टर्म्स आई एम हैविंग? आई एम हैविंग टोटल ऑफ 5 into 4 into 3 into 2. These many terms I am having. These are 120 terms. इन टर्म्स में एक टर्म हमारी सिर्फ वेरिएबल्स, विदाउट वेरिएबल्स होगी ना, कांस्टेंट टर्म होगी हमारी। कौन सी? व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग दीज, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म आएगी, जहां पर बेसिकली एक भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो उस केस के लिए हम -1 कर रहे हैं।
ठीक है। अदरवाइज आप ब्रैकेट को जब यहाँ पर ओपन करेंगे you will have all possible combinations related to O, A, M, B. ठीक है। अगर आप कोई केस बोल रहे हैं सर वो मैंने तो एक केस ऐसा सोचा था कि 2 ऑरेंज और 1 एप्पल और 0 मैंगो और 1 बनानास, तो ये केस यहाँ पर काउंट होगा? हाँ जी बिल्कुल काउंट हो गया है। ठीक है, 2 ऑरेंजेस 1 एप्पल एंड 0 मैंगोस एंड 1 बनाना। जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर जरूर बना होगा। हाँ जी एग्रीड? यस सर। So, but where did the 5 orange and the number of other fruits come from? बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है ना, आपने शायद क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है। ओहो, तो यहाँ पर बेटा एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। विद 10 डिफरेंट फ्रूट्स नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज, है ना? एक मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा था। ओहो सॉरी देन माय मिस्टेक है ना। विद 4 ऑरेंज 3 एप्पल 2 मैंगोस एंड 1 बनाना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, बट नाउ instead of 3 fruits we are selecting few fruits. यस सर। ठीक है, I hope it's clear now. Okay, let's take few more questions here. Okay, now is the case of grouping. ठीक है, आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। सो अगर ग्रुप का बेटा ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है, अगर आप 2 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, फॉर फ्यू आर्टिकल्स, वो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट कब कहलाएंगे? दोज ग्रुप्स विल बी कॉल्ड डिफरेंट व्हेन आइदर दे हैव गॉट डिफरेंट साइज इज देयर। अगर साइज डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स ग्रुप्स डिफरेंट है। ठीक है, और दे हैव गॉट डिफरेंट आइडेंटिटीज आर देयर। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स में से को मुझे 2 ग्रुप में बनाना है, 1 फॉर मैथ्स क्विज 1 फॉर साइंस क्विज। तो उन 2 स्टूडेंट्स, ये 2 जो है ये मैथ्स क्विज के स्टूडेंट हैं और ये साइंस क्विज के स्टूडेंट हैं। तो क्या ये ग्रुप्स डिफरेंट है? हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैथ्स क्विज 2 स्टूडेंट मैथ्स क्विज के लिए सिलेक्ट हुए हैं ना। तो कौन से 2 मैथ्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं? तो दैट्स सेपरेटिंग दोस ग्रुप्स एज डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो एक बार जब हम इसमें सिमिलर ग्रुप सेम ग्रुप वाली बात करेंगे ना, तो आपको डिफरेंट चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो पहला केस है ग्रुप्स, है ना, नोट डाउन कर लें। अभी सिलेक्शन की जगह ग्रुपिंग हो रही है, और ग्रुपिंग में जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सो मेरे पास 10 लेटर्स हैं, उन 10 लेटर्स को जो है मुझे 2 ग्रुप में बनाना है। ठीक है, वो ग्रुप जो है वो मैथ्स क्विज के लिए है, एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट, एक में 4 स्टूडेंट। क्या ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं? हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 10 में से मैं 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 10C6। ये जो 10C6 मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, सो इनसे अपने आप जो है वो 2 ग्रुप्स डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है बेटा, इनमें से मैंने 10C6 वेज में 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए उनका मुझे कुछ नहीं करना, वो तो अपने आप ही 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए, एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिवाइड इन 2 ग्रुप्स? तो ये एग्जैक्टली सिलेक्शन वाला ही केस बन रहा है यहाँ पर, जहां पर आप 10 में से 6 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर आप वो 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके वहीं पर साइड पर रख रहे हैं आप, है ना, एंड इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 6 and 4। नंबर ऑफ वेज इज 10C6 to divide 10 students in group of 6 and 4. सर मतलब वो हमने एज इट इज इसलिए लिख रहे क्योंकि वो वैसे भी 4C4 हो जाता, तो इनटू 1। हाँ, वो 4C4 वेज हो जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इनटू 4C4। ठीक है, अगर मुझे बोला गया कि 10 स्टूडेंट्स हैं, यू डिवाइड देम इनटू ग्रुप ऑफ 5, 3 and 2, तो सबसे पहले मैं 10 में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, 10C5। आई एम कीपिंग देम सेपरेटली, मैंने उनको सेपरेटली यहाँ पर रख दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 3 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, किस में से? 5 रिमेनिंग में से, 5C3।
ठीक है, these are 3 students, then 2, so that is 2c2, and my answer will be 10 factorial by 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. That will be my answer. है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 10 factorial by 5 factorial, 5 factorial, then 5 factorial by 3 factorial, 2 factorial, and 2 factorial by 2 factorial, 0 factorial. So this gets cancelled, and this is eventually your answer. ठीक है, so again let's say I have got 11 students are there. I am dividing them in group of 5, 3, 2, 1. So answer कितना होगा बेटा? 11 factorial by 5 factorial into 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial, है ना? That's my answer. ठीक है, सिंपल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं हम. 4 students in 2 groups of maths and science. So answer will be 4 factorial by 2 factorial, 2 factorial. One group is for maths, another is for science. ठीक है, अब इसी केस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा आप. अगर मेरे पास A, B, C, D है, ठीक है, तो मैं अगर इनको बेटा डिवाइड कर रहा हूँ, लेट्स से मैथ्स के ग्रुप में और साइंस के ग्रुप में, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. दिस आंसर इज 6, है ना. 6 कैसे है, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, बी सी ए डी, बी डी ए सी, एंड सी डी एंड ए बी. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ इफ आई विल आस्क कि आप बेटा ए बी सी डी को सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ठीक है, उन 2 को डिवाइड करके जो है मैं उनके बीच में लेट्स से चेस कंपटीशन रख रहा हूं, तो वो जो 2 ग्रुप हैं 2 स्टूडेंट की, उनका साइज सेम है? हाँ जी बिल्कुल. क्या वो उनका नाम भी सेम है, आइडेंटिटी भी सेम है, क्योंकि बोथ आर चेस टीम्स. ठीक है, सो प्रैक्टिकली इफ आई एम आस्किंग यू कि भाई आप 4 स्टूडेंट को 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सेम है और उनका साइज सेम है, ठीक है, तो वो आइडेंटिकल ग्रुप्स है. अगर आप टीचर के पास ये लेकर जा रहे हो कि मैं उनको जो है ऐसे पॉसिबल ग्रुप्स है, इनमें से कौन सा मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो टीचर क्या कहेगा, टीचर विल से कि भाई ये ए बी प्लेइंग अगेंस्ट सी डी या सी डी प्लेइंग अगेंस्ट ए बी, है ना, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो सेम ही है, हाउ दे कैन बी डिफरेंट. तो ये अराइज क्यों हो रहा है, ये अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रुप्स आर सेम. आप पहले जो है क्या कर रहे थे, आप पहले ए बी एक सेपरेट ले रहे थे और सी डी देन लेफ्ट आउट हुआ सेपरेट, या फिर जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो सिलेक्ट कौन सा हुआ तो वो आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है. मैंने सिलेक्ट किया सी डी को, तो ए बी इज नॉट सिलेक्टेड, सो दीज आर काउंटेड एज डिफरेंट. बट अगर मैंने टेबल पर आपके, है ना, 4 टॉफीज रखी हैं ए बी सी डी, मैं कह रहा हूं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, तो आप उनको डिवाइड कर रहे हैं. पहले केस में आप ए बी और सी डी यहां पर ऐसे रख रहे हैं, दूसरे केस में आप सी डी और ए बी यहां पर रख रहे हैं, तो ये डिवीजन एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है. दिस विल नॉट बी काउंटेड एज सेपरेट केस, ये सेपरेट केस नहीं है, ठीक है. सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट केस नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है दैट विल बी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड इनका आपस में कोई परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, सो बाय 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल किस लिए है, क्योंकि ये 2 के जो 2 ग्रुप्स बने हैं वो 2 बार परम्यूट आपस में नहीं हो सकते हैं, सो फॉर दैट वी आर डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसमें प्लीज, है ना, राइट इट डाउन. अगर मुझे ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मैं आपको आंसर्स लिख रहा हूं यहाँ पर, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 10 स्टूडेंट्स हैं,
I have to divide into, सारे केसेस लिखने हैं आपको, है ना, एग्जांपल्स हैं ये, बेसिक केसेस नहीं है, but it will clear your concept. 5 each. My answer will be 10 factorial by 5 factorial 5 factorial. ये परम्यूट नहीं हो सकते हैं, so by 2 factorial. 10 students with 2 each. Answer will be 10 factorial by 2 factorial 2 factorial 2 factorial 2 factorial 2 factorial. ये तो 5 ग्रुप में आप डिवाइड कर रहे हैं सर into 5 factorial. हाँ जी, by 5 factorial ये भी आएगा. वेरी गुड. 10 है in 3 3 and 4. आंसर बताओ. सर 10 factorial upon 3 factorial into 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial. into 2 factorial. वेरी गुड, क्योंकि ये आपस में परम्यूट नहीं नहीं हो सकते. Impressive, very good. Let's say I am taking 12 students, 2 2 2 3 3. हाँ जी, आंसर 12 factorial by 12 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial. वेरी गुड, है ना. और यही आईआईटी का क्वेश्चन बन जाता है, वेयर द आंसर विल बी 12 factorial by 2 factorial raised to power 4 and 3 factorial raised to power 3. ठीक है, इसी में ही आपका एक ऑप्शन क्या होगा, 12 factorial by 2 factorial raised to power 3 3 factorial raised to power 2. ये गलत है और ये सही आंसर है. ठीक है, ग्रुप्स में जहां पर ग्रुप साइज आइडेंटिकल है या फिर ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिकल है, देन मीन्स आपके जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, वो आपस में परम्यूट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा 12 टीम्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2 फॉर साइंस क्विज, मैथ्स क्विज एंड लेट्स से हिंदी क्विज, and 3 students I am selecting for let's say चलो हिस्ट्री क्विज के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये. ठीक है, तो क्योंकि ये मैथ्स, हिंदी और साइंस की क्विज के लिए है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज नॉट आइडेंटिकल ग्रुप. ये आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होंगे फिर, है ना. हम जो परम्यूट कर रहे हैं ए बी सी डी एंड ई एफ और ई एफ सी डी एंड ए बी, ये सेपरेट काउंट हो जाएंगे कि भाई ये ऊपर वाला तो मैथ्स का है, ये आपका साइंस का है और ये वाला हिंदी का है. तो दिस टू केसेस विल बी काउंटेड सेपरेटली इफ ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, इस केस में हमारा जो आंसर होगा तो उसमें एक 3 फैक्टोरियल वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप्स हमारे आइडेंटिकल नहीं है. जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे उतना ही डिवीजन में आपका फैक्टोरियल आएगा. हाँ जी, एग्रीड एवरीवन? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड. ये बहुत ही हॉट कॉन्सेप्ट है ना, स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इसमें. सिर्फ ग्रुप की आइडेंटिटी पे ध्यान रखना है. डिवाइड 6 स्टूडेंट्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, है ना. अब यहाँ पर साइज सेम है, प्लस ग्रुप्स का कोई नाम नहीं है. तो अगर तीनों ग्रुप का नाम नहीं है तो तीनों ग्रुप बेसिकली नेम वाइज भी आइडेंटिकल है. ठीक है, साइज वाइज आइडेंटिकल है, नेम वाइज आइडेंटिकल है. सो हमारा आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स फास्ट. हाँ जी, वेरी गुड अभिराज. आपका आंसर लेकिन गलत हो गया है, फिर से टाइप करो, सोचो कहाँ मिस्टेक की अभिराज. 6 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. वेरी गुड वैभव, सारांश, सिद्धांत, मिस्टेक. अगर हमें सिर्फ नॉर्मल वे में डिवाइड करना होगा तो हमारा आंसर होगा पहले 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करो, फिर बाकी 4 में से 2 करो, फिर बाकी 2 में से 2 करो, है ना. दिस आंसर इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स आइडेंटिकल है, ग्रुप्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, तो इसीलिए 6 में से एक ही केस काउंट होगा, 1/3 फैक्टोरियल भी आएगा, है ना.
ये 2 2 2 के 3 ग्रुप्स हैं, सारे आइडेंटिकल हैं, इसीलिए बाय 3 फैक्टोरियल भी हमारा होगा। ठीक है, दिस इज माय आंसर। हाँ जी, रियाना समझ में आया बेटा आपको? परिचय आपके आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा। प्रांतिक आंसर्स, निष्ठा, हरप्रीत। Okay, so let's do some more division. So there are 12 students are there, and I have to make 4 teams of 3 each. These 3 teams are going to participate in maths quiz, and this one is for science quiz. In how many ways I can make them into teams? Hanji, very good, Saransh. Answer is 12 factorial by 3 factorial raised to some power. तो आप वो पावर बताएं into k, x और k क्या क्या होगा? ठीक है। तो यूजुअली आईआईटी में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि दिस कैन परम्यूट इन दिस मैनी वे, फाइंड x प्लस k, ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, अभिराज आंसर। सो करेक्ट आंसर बाय सारांश, वैभव, रेयाना, परिचय यू हैव मिस्ड, विजया आपने थोड़ा सा गलत किया है। हाँ जी, लेट मी कॉल विजया, आप बताओ बेटा। 12 स्टूडेंट्स हैं, इनको मुझे आप सिर्फ इतना जानो 3-3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने वेज में कर सकते हैं बेटा? Set 12 factorial upon 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 3 फैक्टोरियल है ना, 4 ग्रुप हैं, 3 थोड़ा ना है हमारे पास। Yes. ठीक है, अब अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, इनका साइज सेम है, ठीक है, प्लस इन तीनों का नाम भी सेम है, तो ये तीनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं। अगर ये तीनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो बाय 3 फैक्टोरियल भी आएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो माय आंसर इज 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5, सॉरी रेज टू पावर, हाँ जी 5। और यहाँ पर अगर हमें गिवन होता 12 फैक्टोरियल बाय 3 रेज टू पावर x इंटू k, तो आपका x जो है वो 5 हो जाएगा एंड k विल बी 1। ठीक है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4 इंटू k को हम फिर 6 भी ले सकते हैं, वो भी एक करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अमेंड होना चाहिए था यहाँ पर। हाँ जी, x equal to 5 and k equal to 1. हाँ जी, x equals to 5, k equals to 1 is one of the solution. x equals to 4 and k equals to 3 factorial, that also is one of the solution, है ना, और k 6 हो जाता। बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे थे, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है यहाँ पर। हाँ जी बोलो सर। हाँ जी सर अगर ये ऐसे न्यूमेरिकल टाइप में आता तो सर फिर ऐसा होता है कि कोई आंसर एक्सेप्टेबल है और कोई नहीं है? नन ऑफ दीज की ऑप्शंस विल बी देयर, बट आईआईटी का पेपर बेटा बहुत स्क्रूटनी से गुजरता है ना। सो वंस टीचर सबमिट देयर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उनमें से क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं एंड देन दे आर क्रॉस वेरीफाइड, चेक होते हैं। तो आईआईटी इज नॉट लाइक एनटीएससी स्टेज 1 ऑफ दिल्ली, जहां पर 15-20 क्वेश्चन बोनस हो जाते हैं। ठीक है, होते हैं, जरूर होते हैं बोनस, कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट बहुत रेयर होता है। ओके सर। ठीक है, आई विल टेल यू, अगर कोई क्वेश्चन बेटा है ना, 2 टीचर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसी क्वेश्चंस को अगर 10 लाख स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अटेंड कर रहे हैं, तो वो 10 लाख स्टूडेंट्स जो है ना, दे विल थिंक इन 10 लाख डिफरेंट वेज, है ना, एंड दे मे कम आउट विद वन मोर पॉसिबिलिटी कि भाई ऐसा भी तो हो सकता था। तो देयर आर समटाइम्स, यू नो, दे कम आउट विद सम इनोवेटिव
आंसर्स और सॉल्यूशन और सम एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कि ये भी करेक्ट हो सकता था, ठीक है। सो उस केसेस में फिर वो बोनस हो जाता है। ओके सर। Divide 6 students in 3 groups of 2 each and divide 3 students in 6 students in 3 groups of 2 each for English, Math and Science, है ना। दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर पहले केस में ग्रुप का नाम नहीं है तो वो नेम वाइज भी आइडेंटिकल है। सो फर्स्ट केस में हमारा जो आंसर है दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, 3 आइडेंटिकल तो 3 फैक्टोरियल। एंड सेकेंड केस में हमारा जो आंसर है दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये दिस इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट कॉन्सेप्ट इन पीएनसी। पीएनसी में वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट कॉन्सेप्ट है। आपको क्लैरिटी रखनी है कि बाय क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रुप्स है ना, हमने वो 4 के केस में लिया था, स्टिल इफ यू हैव डाउट कि ये डिवीजन में 3 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, डू सेंड मी व्हाट्सएप एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में विल कीप 10 minutes एक्स्ट्रा सेशन। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन विद एन एग्जांपल। Divide 10 people in group of 5 each for tug of war. Write your answer fast. हाँ जी वैभव, अभिराज, सिद्धांत, परिचय, छोटी सी चीज मिस हो गई है, विजया, वेरी गुड। सो 10 पीपल को 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। आंसर इज 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। बात खत्म। बट क्या वो ग्रुप सेम साइज के हैं? यस। क्या उनका सेम नाम है? यस, ठीक है। सो आंसर विल बी बाय 2 फैक्टोरियल मोर। एक ग्रुप को सेम होने के लिए साइज एंड आइडेंटिटी दोनों रिक्वायर्ड है? दोनों रिक्वायर्ड है। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दोनों की आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। अगर मैंने यहां पर बोला इनटू ग्रुप ऑफ 4 and 6 स्टूडेंट फॉर टग ऑफ वॉर, तो आंसर क्या होगा? 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, दैट्स इट, ठीक है। आप इसमें आगे कुछ और डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि उनका साइज डिफरेंट है, ठीक है। आप समझे? मैं जब डिवीजन कर रहा हूं बेटा, डिवीजन में मैंने यहां रखा ए बी, यहां रखा सी डी ई, ठीक है। या फिर ओके यहां पर तो साइज ही डिफरेंट है ना, तो दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर हियर, ठीक है। अगर चलो अगर साइज डिफरेंट है बेटा, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सेपरेट ग्रुप, है ना। तो बिल्कुल ही सेपरेट केस है हमारा, ठीक है। उसमें तो रिपीटिशन बिल्कुल ही नहीं हो रही है, तो बाय डिवीजन का सवाल ही नहीं पैदा होता उसमें। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखते हैं। अगर मुझे 10 ग्रुप में से 4 और 6 में डिवाइड करना है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं सर 10 में से ना 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने जैसे ये 4 सिलेक्ट किए, बाकी जो 6 बचा वो लेफ्ट आउट हो गए, तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, बात खत्म। अगर मुझे 10 में से 5 के 2 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो 10C5, 10 में से मैंने 5 सिलेक्ट किए। ये किस चीज के लिए है? ये टग ऑफ वॉर के लिए है, ठीक है। बाकी जो बच गए 5 वो किसके लिए थे? वो भी टग ऑफ वॉर के लिए थे। अब मैंने जो पहले जो 5 सिलेक्ट किए, अगर मैं वो ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूं, है ना, 10C5, और फिर ये 5 जो बच गए वो 5C5, ये केस तो सेम हो रहा है ना। आप समझ रहे हैं? जब आप ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं देन इट टर्न्स आउट टू बी द सेम केस, ठीक है। आपने ABCD को पहले सिलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग 5 रह गए।
और जो बाकी जो बच गए थे FGHI उनको आपने पहले सिलेक्ट कर लिया तो फिर ABCD ही रह गए, बट दोनों इन द एंड कहां पर एंड अप हो रहे हैं? दे आर एंडिंग अप एज टग ऑफ वॉर टीम, सो बोथ द केसेस विल बी काउंटेड एज सेम एंड thus by 2 factorial comes. यस सर। चलो आंसर करेंगे। चलो ये तो हमने कर लिया एक्चुअली ऑलरेडी। ओके, डिवाइड 8 स्टूडेंट्स इन 4 ग्रुप्स of 2 each for maths and science quiz। ठीक है, यहां पर हमें 8 स्टूडेंट्स, इनके 4 ग्रुप बनाने हैं, 2 2 2 2। ठीक है, ये जो 2 ग्रुप है ये मैथ्स क्विज के लिए हैं और ये जो 2 ग्रुप हैं ये साइंस क्विज के लिए हैं। इन हाउ मेनी वेज? टाइप योर आंसर प्लीज। हाँ जी, वेरी गुड, गुड गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है, ये आईटी का क्वेश्चन है। वेरी गुड। परिचय आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बस लास्ट में थोड़ा सा मिस कर जाते हो। सबसे पहले तो 8 स्टूडेंट्स 4 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, सारी चीज भूल जाओ जो पढ़ाई है ना। आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखेंगे इनमें से कौन से ग्रुप आइडेंटिकल है। साइज तो सभी की सेम है, वेरी गुड, बट 2 जो है वो मैथ्स के ग्रुप है तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, और 2 जो है वो साइंस के ग्रुप है तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। जितने भी आइडेंटिकल होंगे, 2 आइडेंटिकल हैं तो बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 आइडेंटिकल हैं तो बाय 2 फैक्टोरियल, बात खत्म। हाँ जी, आंसर इज 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 6। ठीक है, और आईटी का पेपर जब आता है लेवल 1 to 3 में कंसीडर होते हैं कि क्वेश्चन इजी था, मुश्किल था, डिफिकल्ट था। ठीक है, दिस इज कंसीडर्ड एज लेवल 3, वेरी डिफिकल्ट, जबकि थिंग्स आर वेरी इजी एंड सिंपल इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। Solve this. I'm giving you some time, 5 minutes. Read it carefully. Get answer. Check it again. आपको वापस चेक करना है and be sure that this is your final answer. Okay, very good. So we have correct answer from Vaibhav, सारांश एंड आर्यन वर्मा, है ना। ये 2020 IIT एडवांस का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। सर एडवांस्ड का, एडवांस का है ना, नॉट मेन। एडवांस इज कंसिडर्ड मोर टफ। 18 क्वेश्चन तो आते हैं टोटल, उसमें से 2 क्वेश्चन पीएनसी के थे, है ना। एंड यू हैव करेक्ट दोस क्वेश्चंस, सो कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, डोंट गेट स्केयर्ड विद आईआईटी, है ना, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, चीजें बस क्लियर होनी चाहिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज। तो मतलब फिर ये तो सब नहीं कर दिया होगा, बोनस जैसा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस साल का आईआईटी मैथ्स जो है इट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट, है ना। और स्टूडेंट्स का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर, वो मतलब 35 36 का एवरेज स्कोर था आउट ऑफ 132। 132 में से 36 वाज एवरेज, मतलब जो क्वालिफाइंग के लिए स्कोर था। दे स्कोर्ड वेरी गुड इन केमिस्ट्री, दैट वाज इजीएस्ट, फिजिक्स वाज मॉडरेट, मैथ्स वाज टफ, एंड दिस इज अमंग द टफ क्वेश्चन। ओके, मैं बोला ना, ये जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन अपने आप में टफ माने जाते हैं। बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बाय 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो वो चीज ही क्लियर नहीं होती है। तो अप्रोच, आर्यन आपने कैसे अप्रोच किया बेटा? पीपल जो 6 लोग हैं उनको 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, क्योंकि 4 रूम्स हैं हमारे पास सर। वो आइडेंटिकल है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो वो 4 टाइम्स आएगा। नॉट वेरी क्लियर, सारांश। यस सर,
सर इसमें सर ग्रुपिंग वाला कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, तो सर हमने पहले ग्रुपिंग वाला जैसे पहले करते थे वैसे ही किया कि सर दो 2-2 के रूम्स होंगे सर। केस यही होएगा कि क्योंकि सर 6 लोग हैं और एट मोस्ट 2 है, तो सर 2 रूम्स में 2-2 होंगे और बाकी 2 में 1-1 होंगे। ओके, व्हाट अब सर सारांश इज पहले ये सेइंग इज, ग्रुपिंग, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। व्हाट सारांश इज सेइंग कि सर 6 लोग हैं, पहले इन 6 लोगों को 4 ग्रुप में तो डिवाइड करें, फिर उसके बाद 4 लोगों को 4 रूम में बिठाना मुश्किल नहीं है, वो तो 4 फैक्टोरियल है। यहाँ पर अगर 6 लोगों की जगह 4 लोग होते तो हमारा आंसर क्या होता? 4 लोग 4 रूम में बिठाने हैं, कितने वेज में करोगे? 4 फैक्टोरियल वेज में। बट यहाँ 4 की जगह 6 लोग हैं, हर एक में जो है एक एक आना जरूरी है, और किसी में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली इतनी लंबी चौड़ी कहानी उसने लिखी है, तो ही इज जस्ट सेइंग कि ये जो 6 लोग हैं इनको आप 2-2-1-1 के 4 ग्रुप में डिवाइड करें, फिर इन चारों ग्रुप को 4 रूम में 4 फैक्टोरियल वे में परम्यूट कर दें, है ना। तो यहाँ पर आप 6 लोगों को 4 ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे? तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आपके 4 ग्रुप हो गए, है ना। बट यहां पर ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? इसका तो कुछ भी नाम नहीं है, इसका भी कुछ भी नाम नहीं है, तो ये आइडेंटिकल हो गए, तो बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर ये देखेंगे, ये भी कोई नाम नहीं है, साइज भी सेम है, ये भी आइडेंटिकल है, सो बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आपने 4 पहले ग्रुप बना लिए और उनको परम्यूट करने के लिए कहा, तो आपने उनको परम्यूट कर दिया 4 फैक्टोरियल वे में। दिस इज योर आंसर। सर इनटू 4 फैक्टोरियल परम्यूट करना मतलब आपने यहां पर एक मिनट, आपने यहां पर जो किया है बेटा, आपने क्या किया? 6 लोग थे, ABCDEF, इन 6 लोगों को आपने 4 ग्रुप बनाए। आपने ग्रुप बनाया AE, BC एंड D एंड F, ये 4 ग्रुप बना दिए आपने। ये ऐसे ऐसे 4 ग्रुप कितने वे में बनेंगे सर? इतने वेज में बनेंगे ये ग्रुप। उसके बाद हर ग्रुप को आपको रूम में असाइन करना है। 4 रूम है, चारों रूम की अलग आइडेंटिटी है, इसको आपने पहले रूम में किया या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में, है ना, दैट डिपेंड्स। तो आपके पास 4 रूम है, उन 4 रूम में आप इन 4 ग्रुप्स को अलॉट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका पहले में कितनी ऑप्शंस हैं? 4, या तो AE आएगा या BC या D या F। दूसरे में कितनी ऑप्शंस हैं? 3, 2 एंड 1। ओके सर, ठीक है, सो दिस वाज योर ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग के बाद आपकी जब ग्रुपिंग हो गई है उसके बाद यू हैव डन परम्यूटेशन। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस ओके, वेरी गुड। वैभव ने शायद कुछ अलग वे में किया। वैभव, आपने कैसे किया बेटा? सर पहले हमने 6 में से 4 लोग चूज कर लिए, 6C4, ओके, फिर उन 4 को रूम्स में बिठा दिया इनटू 4 फैक्टोरियल। into 4 factorial, so you are getting 6 factorial by 4 factorial 2 factorial into 4 factorial, okay। फिर हमने सर वो 4 रूम चूज कर लिए, जिस 4 में से 2 रूम चूज कर लिए 4C2। 4 में से वो 2 रूम जहां पर चीजें डबल हो जाएंगी, 4C2, फिर into सर factorial 2 factorial 2 factorial फिर इनटू 2 फैक्टोरियल। into 2 factorial किस चीज का? सर वो डिवाइड का शायद नहीं, आपका यहाँ आंसर गलत हो गया। into 2 factorial, 2 फैक्टर्स, हाँ ठीक है। तो अगर आपकी अप्रोच अगर हम देखें तो पहले आपने 6 में से 4 लोग सिलेक्ट किए हैं और उनको आपने सबको सिंगल सिंगल डाल दिया है ना। तो बेटा यहाँ पर नहीं, बात नहीं बनेगी, है ना। अगर आपने ABCD को डाला, उसके बाद आप E एंड F को डाल रहे हैं, आपने यहाँ E को डाल दिया, यहाँ F को डाल दिया, ठीक है। फिर आपने पहले 4 जो सिलेक्ट किए वो थे AECD, ठीक है, AECF, और उसके बाद आपके पास जो बच गए B और D, उसको आप डाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। आपने B को यहाँ डाला, D को यहाँ डाला, तो ये जो केस है ये केस एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जो 2 बार काउंट कर लिए आपने, ओके सर। ठीक है।
Okay, congratulations. 7 different coins are to be divided. Again, IIT का question है. Amongst 3 persons, if no 2 of the person receive the same number of coin, but each receive at least 1 coin, then the number of ways in which the division may be made. ठीक है? No 2 person to receive the same coin, but each receives at least 1 coin. तो ये जो 7 कॉइन्स है, पहले तो आप मुझे ये टाइप करके बताओ, ये 3 लोगों में किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सबको एक एक मिलना चाहिए और किन्हीं भी दो को जो है सेम नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं होने चाहिए. तो इन व्हाट कॉम्बिनेशन यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 7 कॉइन्स? सर सारे केसेस भेजने हैं. सारे केसेस, सर ऑल मैंने पॉसिबल एक केसेस. पहले भेज दिया था, तो सर मैं उसके बाद वाले भेज रहा हूँ. हाँ भेजो, उसके बाद उसके अलावा कौन से केस बन रहे हैं और सभी से एक्सपेक्टेड है. ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है. ना सिद्धांत, 7 कॉइन्स जो है वो 3 लोगों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. तो ये मैनेज करते हुए केस क्या बनेगा? पहले को मैंने 2 दिए, दूसरे को 3, तीसरे को 4. केस कौन से बनेंगे? कितने टाइप के केस बनेंगे इन विच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द कॉइन्स? केस 1, दैट इज सारांश इज सेइंग सर 1, 2 एंड 4. एक को 1 मिल रहा है, दूसरे को 2 मिल रहा है, तीसरे को 4 मिल रहे हैं. एनी अदर केस? ठीक है सारांश, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे बेटा. सबको कम से कम 1 मिलना चाहिए, तो 1 1 1 हो गया. सबके पास डिफरेंट होना चाहिए, तो मिनिमम पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 3 हो गया. अब एक कॉइन और बचा एक्स्ट्रा, वो यहाँ दे नहीं सकते आप, यहाँ पर भी नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि 1 3 3 हो जाएगा. सिर्फ यहीं पर पॉसिबल ये दे सकते हैं आप. तो 1 2 4. तो 1 2 4 इज द ओनली पॉसिबिलिटी इन विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कॉइन्स. यस सर, ठीक है. मैंने तभी नहीं अगर आप भेजा था. देखेंगे तो ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है. 6 लोगों को आप डिवाइड कर रहे थे जो गिवन कंडीशंस थी उस बेस पर. देन यू फाउंड कि ओनली डिवीजन इज 2 2 1 1. वो डायरेक्टली नहीं बोला था उसने, यहाँ पर भी उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि 7 कॉइन्स को 1 2 4 के वे में डिवाइड करना है 3 लोगों में. ठीक है. तो पहले आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम थिंग. पहले 7 कॉइन्स को आप क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे. और ग्रुपिंग करने के बाद इन 7 कॉइन्स को, इन 3 ग्रुप को 3 लोगों में आप परम्यूट करेंगे. ठीक है. तो पहले इन कॉइन्स के आप 3 ग्रुप बनाए. 3 ग्रुप आपने बना लिए. यहाँ पर ये कॉइन्स हैं, यहाँ पर ये कॉइन्स हैं, सारे डिफरेंट कॉइन्स हैं ना, और ये कॉइन है. उसके बाद 3 लोगों को आप बुला रहे हैं, तो वो 3 लोग कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? इसको ए ने किया, इसको बी ने, इसको सी ने, या फिर इसको बी ने, और ये जो है it went with C, this went with A, that will become permuting. ठीक है. आंसर टाइप करेंगे, ग्रुपिंग प्लस परम्यूटिंग हो रहा है यहां पर. हाँ जी आर्यन वर्मा, आपने वो मिस्टेक की है जो एक्सपेक्टेड थी. वैभव करेक्ट, सिद्धांत रॉन्ग. अभिराज करेक्ट, वेरी गुड, इंप्रेसिव. अभिराज रॉन्ग, सॉरी. ऊपर में आप चेक करो बेटा, पहला जो लेटर आपने टाइप किया डिजिट वो गलत है. और क्यों गलत है चेक करो. 7 different coins. वो टाइप नहीं रखा. हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट देन. हाँ जी सिद्धांत करेक्ट नाउ, इंप्रेसिव. सो लेट्स सी हियर. हाँ जी, आई विल कॉल आर्यन वर्मा. आर्यन, आर्यन. यस सर. तो 7 कॉइन्स को बेटा आपने 1 2 और 4 में डिवाइड किया. कितने वे में किया बताओ? 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल सर, फिर इनटू 3 फैक्टोरियल. इंटू 3 फैक्टोरियल. ये इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों किया आपने? क्योंकि वो 3 लोगों के बीच में हो, 3 वेज में हो सकता है. मतलब किसी एक को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 4
ना 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 3 फैक्टोरियल फिर से बताओ। मतलब किसी मतलब 3 लोगों में ये 3 डिफरेंट वेज में हो सकता है। डिफरेंट वेज में जो हो सकता है वो तो ऊपर होना चाहिए इनटू 3 फैक्टोरियल, कि नीचे वाला 3 फैक्टोरियल क्यों किया आपने? 3 ग्रुप्स थे इसलिए किया 3 फैक्टोरियल। कोई बताएगा ये 3 फैक्टोरियल गलत क्यों है? सर क्योंकि वो सब अलग अलग ग्रुप्स है, कोई क्योंकि ये मतलब ग्रुप्स सेम अलग अलग हैं, है ना? ये ग्रुप्स अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि इनका साइज अलग अलग है। ठीक है, अगर इनका साइज सेम होता तो ये बाय 3 फैक्टोरियल बिल्कुल वैलिड था। ठीक है, क्योंकि जब मैं टेबल पे ये 3 कॉइन्स के ग्रुप बना रहा हूं तो उनको मैंने कोई नाम नहीं दिया, लेफ्ट ग्रुप राइट ग्रुप ऐसे नाम नहीं दिया कोई, है ना? अगर ये ग्रुप जो है आपके सेम साइज के होते तो ये बाय 3 फैक्टोरियल वैलिड था, बट यहाँ पर ये तीनों ग्रुप साइज डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए ये 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। बाय 3 फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? when all the groups are same size and same name is there. No name also means same name. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। पहले आपने जब ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग इज 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसका लॉजिक क्या है? पहले 7 में से आपने 4 कॉइन्स अलग किए, फिर 4 में से आपने 7 में से आपने 4 कॉइन्स अलग किए, फिर बाकी जो 3 बच गए उसमें से 2 अलग किए, फिर एक जो बचा उसमें से वो एक अलग रख दिया आपने, है ना? दिस आंसर इज सेम। फिर परम्यूट, 3 ग्रुप है 3 लोगों में, कितने वे में परम्यूट करेंगे? 3 फैक्टोरियल वे में। दैट्स योर आंसर। चेक कर लें, एनीवन एनी डाउट इन दिस? सर इनको 3 ग्रुप में बांटा है इसलिए 3 से वो किया ना। हाँ, इनटू 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं, तो बेसिकली 3 आर्टिकल हो गए, डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए जिनको हम 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो इसलिए इनटू 3 फैक्टोरियल। हाँ जी, डन। ओके, सर्कुलर परम्यूटेशन इट्स एन इजी टॉपिक। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब है अरेंज करना, है ना? अगर मुझे 3 लोगों को अरेंज करना है यहाँ पर ए बी सी, कितने वे में मैं कर सकता हूँ? तो बेसिकली आप यहाँ पर एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो है एक रो में 3 चेयर्स रखी हैं बेटा, है ना? ये 3 चेयर्स हैं, इन चेयर्स में पीपल आर गोइंग एंड सिट। तो जो पहला बंदा जाएगा, पहला बंदा जाकर बैठेगा, कहीं पर तो बैठेगा वो यहाँ पर बैठा। मैंने उससे फोन करके पूछा भाई तू कहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? जो 3 चेयर है उसमें मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पर बैठा हुआ हूँ, है ना? दैट ही विल से। अगर वो यहाँ बैठा है, 3 चेयर हैं उसमें मैं सेंटर में आई एम सिटिंग, यहाँ पर है तो 3 चेयर्स में मैं राइट साइड पर आई एम सिटिंग, है ना? सो दैट फर्स्ट पर्सन इज हैविंग 3 ऑप्शंस, then the second person he will have 2 options, and third person he will have only 1 option to sit. So answer is 3 into 2 into 1. But when it comes to the circular permutation, अगर यहाँ पर बेटा 3 चेयर्स हैं, ठीक है सारांश, मैंने आपको बोला बेटा आप जाकर जो उस सर्कुलर टेबल पर बैठ जाओ, तो सारांश जो है यहाँ जाकर बैठ गया। अब मैं उससे फोन करके पूछ रहा हूँ, हॉल है, हॉल में सेंटर में टेबल रखी है, उसके आसपास 3 चेयर है। मैं उससे पूछा सारांश कहाँ पर बैठे हुए हो, कैन ही स्पेसिफिकली टेल कि कहां पर कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है उन तीनों में से, है ना? ही कैन नॉट नो सर, स्पेसिफिकली जब टेल। तक कोई और नहीं आएगा। हाँ, उसको पता ही नहीं चल रहा वो कहां पर, मतलब ऐसा स्पेसिफाई कैसे करे? ये तो सर्कुलर टेबल है ना, यहाँ पर लेफ्ट राइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ही कैन नॉट स्पेसिफिकली से कि वो कहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, बट सारांश जब जाकर वहां पर ही है सिट डाउन, तो उसके बाद जो है इफ लेट्स से विजया इज गोइंग, तो विजया विल से कि सर मैं सारांश के लेफ्ट में बैठी हूँ या सारांश के राइट में बैठी हूँ, है ना? शी कैन से हर पोजीशन वेरी स्पेसिफिकली। अगर वो यहाँ पर ये और ऑप्शंस है, ठीक है, एंड इफ शी इज सिटिंग डाउन हियर, शी से सर मैं सारांश के लेफ्ट में 3rd चेयर पे बैठी हूँ, तो आई नो सारांश जहाँ बैठा है उसके लेफ्ट से 3rd चेयर, तो दिस इज द प्लेस वेयर विजया इज सिटिंग, है ना? बाकी सबके लिए पोजीशन बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में
आप एक वे में और देखेंगे तो लीनियर में ABC या फिर CAB or BCA all will be counted as different in case of linear, while in case of circular this combination will be counted same. यहाँ पर A के राइट में B है, लेफ्ट में C है, A के राइट में C है, लेफ्ट में B है ना, सेम थिंग इज गेटिंग काउंटेड. A के लेफ्ट में B है, राइट में C है, both the all the three cases are same. तो circular permutation of n objects in n seats can be done in n minus 1 factorial ways. ठीक है, इसी को आप ले सकते हैं. और in circular permutation first make only one person sit on any seat and then solve as normal permutation question. उसके बाद सर्कुलर वर्ड की वैल्यू ही खत्म हो जाती है. सर दोनों सेम ही तो चीज है. दोनों सेम नहीं है ना. अगर मैंने आपको चेयर दी है बेटा कि यहाँ पर जो है 10 चेयर है, अब उन 10 चेयर में आपको 8 लोगों को बिठाना है. अब कैसे बिठाओगे? n-1 फैक्टोरियल करोगे, क्या करोगे आप, है ना? यस सर. 10 chairs and you have to make 8 person sit. तो आप सिंपल सा है, पहले एक बंदे को भेजो कि भाई तू जा, तू वेला बंदा है, हमारी हेल्प कर. तो वो पर्सन जाएगा एंड ही विल सिट, ही विल ऑक्यूपाई एनी वन चेयर. बस. अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया. नाउ आई विल सॉल्व दिस एज अ नॉर्मल क्वेश्चन. 9 chairs और 9 blanks are there in which 7 people have to sit. यस सर अगर 11 चेयर्स होती तो हम क्या 2 बंदों को भेज? नहीं, एक ही बंदे को भेजेंगे. पहला बंदा जो जाएगा वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा सर्कुलर टेबल पर, उसकी परम्यूटेशंस काउंट नहीं होंगी. उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनकी परम्यूटेशंस काउंट होंगी. ठीक है. सो परम्यूटेशन ये वाला है ना, पॉइंट नोट कर लें आप. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो सर्कुलर परम्यूटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. ठीक है, दीज टू आर द टॉपिक्स विच आर लेफ्ट. इसके बियॉन्ड जो है एक पर्टिकुलर केस लेंगे वेयर वी आर पुटिंग डिफरेंट बॉल्स इन द बॉक्सेस. तो वहां से जो है वो केसेस आपको याद करने होंगे, है ना. फिर हमारी अभी जो नंबर ऑफ क्लासेस लेफ्ट है इस चैप्टर में, दोज आई थिंक आर 3 or 4 classes which are left, and with permutation only I will do probability. ठीक है, both are linked chapters. चलो let's end the session now. सर. हाँ जी बेटा. सर वो जो डीअरेंजमेंट फॉर्मूला का प्रूफ था वो सर वही था ना जो उससे पहले हमने वो जो लेटर वाला क्वेश्चन किया था? ना 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 ना, लेटर वाला तो मैंने समझाने के लिए किया था, उसमें प्रूफ कहाँ बताया मैंने तो आंसर निकाला था बस. जो प्रूफ है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आएगा प्रूफ. यस सर, मतलब आप वही. ओके सर. तो वो प्रूफ अभी आई विल टेल, वो प्रूफ जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है वो. डी-अरेंजमेंट के सब 2-3 क्वेश्चन ही है. डी अरेंजमेंट का प्रूफ बेटा कि डी अरेंजमेंट जो है वो n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल. तो वो जो फॉर्मूला है डी अरेंजमेंट का, वो फॉर्मूले का प्रूफ क्या है. सो दैट प्रूफ आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. सर बाय बाय सर. सर.